Welcome to Beyond the Prescription, Pharma Talks by RCOPNs. I'm Sanskriti Pandey, your host, and I'm thrilled to have you all with me here today. The show where we explore the future of healthcare and science education through visionary leaders, educators, and researchers. Today, we are honored to have with us a remarkable academic leader, Dr. Kapil Khatri sir, the principal of Ravi Shankar College of Pharmacy. I would like to tell you more about Sir. With over 17 years of experience in teaching, research, and institutional development, Sir stands as a pillar of inspiration in the field of pharmacy. Dr. Kapil Khatri Sir has published over 60 research papers, filed 2 international patents, and completed 2 major sponsored projects. Sir has supervised more than 30 MPharm projects and continues to lead with integrity, impact, and innovation. Dr. Kapil Khatri Sir, welcome to the show. Thank you, Sanskriti, for the introduction. Sir, as a principal of Ravi Shankar College of Pharmacy, what are your core vision for the institute? My core vision for Ravi Shankar College of Pharmacy is to establish Ravi Shankar College of Pharmacy as an institute of allied learning in the field of pharmaceutical education and research, to ensure that the students who are graduating from this college, they are technically and fundamentally sound, so that they are well capable of practicing the profession in whatsoever domain of pharmacy they are interested to pursue their career in. And additionally, I am committed to institutional growth and faculty development through digital transformation, through accreditation, and through skill enrichment of the faculty members and of the students. So, basically, in a nutshell, पर्पस ये जो विजन है वो इस तरीके से अलाइंड है कि जो स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन लेने आ रहा है ना, भरोसा कर रहा है कॉलेज पे कि उसका 4 साल की जब वो कोर्स कंप्लीट करेगा तो उसका करियर ब्राइट रहेगा, तो वो बेसिकली अगर इंटरेस्ट से और भरोसा करके आ रहा है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम बेसिकली जब वो एज अ स्टूडेंट को हम एज अ रॉ मटेरियल लें बेसिकली, क्योंकि वो अभी अनबाइज्ड है, तो उसके ऊपर हम काम करें, हम उसको प्रोसेस करें और हम उसको ऐसा सेल्फ मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाएं कि उसको आगे किसी मार्केटिंग की, किसी और के मार्केटिंग की जरूरत ना हो। वो अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ वो अपना जो भी डोमेन या जो भी फील्ड ऑफ फार्मेसी में वो आगे अपना करियर लाइफ लॉन्ग परस्यू करना चाहता है, वो इंडिपेंडेंटली करता रहे और आगे चल के वो और भी स्टूडेंट्स जो यहाँ से ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं उसके लिए एक इंस्पिरेशन बने, है ना। तो एक ब्रॉडर सेंस में एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क बनेगा, एक कनेक्ट बनेगा आपस में। तो पर्पस यही है जो लॉन्ग टर्म हमारे विजन्स हैं, प्लस जो भी से हमारे रेगुलेटर हैं, जो पर्टिकुलरली जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके जो टाइम टू टाइम जो रिकमेंडेशंस आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू से क्वालिटी एनहांसमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्रेडिशन, हम उनको भी अडॉप्ट करते हुए चलें ताकि हम ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना विजन जो है वो और एनहांस करते चलें और ब्रॉडन करते चलें, सो दैट हम आने वाले टाइम में एज अ प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूट इमर्ज हों। So, what leadership challenges do you face while managing a pharmacy college? So definitely, as a head, managing a pharmacy institute definitely comes with certain challenges that requires a balanced approach of vision, empathy, and strategic decision making. So the major challenges that we do face sometimes are like faculty recruitment, development, and retention, maintaining the academic standards and results of the institute, looking forward to overcome some of the resource constraints that we may come across over the period of time, and developing a research culture amongst the PG students, and looking forward for the employability or working towards the employability and skill enrichment of the students. In all these areas, I believe in participative or collaborative leadership. I always talk to my staff members and take decisions that aligns with the long-term institutional goals. क्या होता है, मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं
तो अगर आप एक इंस्टीट्यूट को कंपेयर करो, एक से बेस्ट कोरिलेशन ह्यूमन बॉडी हो सकता है। तो जैसे ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है वो बना हुआ है बोन्स का और कार्टिलेजेस का, जो उसको एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है। उसी तरीके से जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो एक इंस्टीट्यूट को एक फ्रेमवर्क देता है ना। वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ का जो फैकल्टी होता है वो बेसिकली आप उसको कोरिलेट कर सकते हो लाइक द ऑर्गन्स एंड द ब्लड। तो जो ऑर्गन्स होते हैं और जो ब्लड होता है वो किसी भी ह्यूमन बॉडी की लाइफ लाइन होता है, उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसे ही इंस्टीट्यूट का जो लाइफ लाइन होता है दैट इज द स्टाफ मेंबर्स, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो होती है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो आपकी कॉम्पिटेंट है ना, वो आपकी से एकेडमिकली साउंड है, तो डेफिनेटली जो एंड मार्केट प्रोडक्ट निकलेगा, जो बच्चा ट्रांसफॉर्म होके निकलेगा 4 सालों में, वो दूसरों से बेटर हो। वर्किंग ऑन योर शॉर्टकमिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कन्वर्ट योर challenges into strengths or opportunities. Sir, as I believe that it is very difficult to make balance between administrative duty and to stay connected with faculty and students. Sir, how do you manage all this, sir? As a head, I believe that strong communication and approachability are the backbone of effective leadership. I always try to understand the challenges, ideas, or concerns of the faculty members, of the students, and try to provide the solutions to those problems. And I also I'm taking regular classes in 2 different semesters at a time. Purpose is के जो भी बच्चे हैं, जब तक हम उनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक हम उनको अप्रोचेबल नहीं रहेंगे, तो बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एकेडमिक स्टडीज वो फेस कर रहे हैं वो ओपनली डिस्कस नहीं करते। लेकिन जब क्लासेस लेता हूँ मैं या उनसे कनेक्ट करता हूँ, तो थोड़ा सा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रिलेटिवली थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं और वो अपना जो भी जेन्युइन कंसर्न्स है वो डिस्कस करते हैं। सेकेंडली, हमने वी हैव आल्सो से कॉन्स्टिट्यूटेड डिफरेंट कमिटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स। तो अगर किसी को कोई ग्रीवियंसेस हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अराइज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर, वो वहाँ पर कम्युनिकेट कर सकता है और वो ग्रीवियंसेस देन प्रॉपर चैनल से मेरे पास आती हैं और हम उस पर प्रॉपर रेजोल्यूशन लेके और उस पर एड्रेस की जाती हैं वो इश्यूज। Yes, I agree, sir. Strong approachability and communication are the backbone of the leadership quality. Sir, what initially motivated you to enter the field of pharmacy, and how did this passion evolve over time? So, initial motivation to enter the field of pharmacy, it came from within the family, and say after completing my studies, say completing my post graduation and PhD, I joined pharmaceutical industry. There I was primarily working on designing novel drug delivery systems for increasing the efficacy of the molecules and minimizing the side effects, so as to ultimate objective was to increase the patient compliance. And as I progressed through my academic and professional journey and I joined academics, so the passion changed at that time. I thought that by nurturing a would-be pharmacist and by inspiring some of the faculty members, I could create a multiplier effect where I can really help the students to say achieve their professional goals. Now, as a principal, my passion lies in creating an environment where academic excellence, professional ethics, and research excellence in research thrives together. So, how did your early experience in research and innovation shape your academic leadership style? So, my earlier experience from industrial research helped me realize the importance of precision, discipline, work ethics, uh, working as a team player, and meeting timelines. And these qualities are not only say fundamental in industrial research but also in academic leadership. Working in pharmaceutical industry exposed me to real-time challenges
and troubleshooting that usually come across during the product development cycles. This experience significantly enhanced my academic leadership style. I emphasized on evidence-based decision-making, goal-driven planning, and fostering a culture of accountability and innovation. My aim has always been to bridge the gap between academia and industry so that our students are both academically sound and industry ready to serve the profession for the lifetime. Sir, would you like to share any pivotal movement in your career which significantly impacted your professional path? The pivotal movement which significantly impacted my professional path is when I was given the responsibility to head or lead this institution. Earlier, primarily, I was focusing on academics and research, but this responsibility exposed me to a broader scope of academic administration. I emphasized on evidence-based decision making, goal-driven planning, documentation, teamwork, budgeting, then looking after the repair and maintenance, looking after the faculty recruitment and their enrichment. So it showed me that leadership in education is not about just oversight, it's about planning, execution, and inspiring your colleagues to pursue excellence. So it's truly appreciating. So let's move on to the most important segment of our podcast, research and innovation. My question is that, sir, how do you cultivate a strong culture among student and faculty? Look, cultivating a strong research culture, it requires vision, consistent encouragement, and a support system. Research is not a title basically, it's a mindset. It arises out of, say, curiosity, understanding, problem solving approach, and to add something to the existing knowledge. सो बेसिकली बच्चों में क्या है, बच्चे रिसर्च को इस तरीके से लेते हैं एज एन कि किसी ने अगर एक सिस्टम बनाया तो हमने एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बना दिया, उसका यूटिलिटी है कि नहीं है बच्चे वो नहीं समझना चाहते, या जो रिसर्चर हैं वो नहीं समझते. बेसिकली रिसर्च के जो ड्राइवर्स होते हैं एकेडमिक्स में और इंडस्ट्री में थोड़े से अलग हैं. एकेडमिकली हम जो रिसर्च करते हैं पर्पस रहता है कि वी शुड ऐड एक छोटा सा नॉलेज या वैल्यू एडिशन करते हैं. सपोज देयर आर सॉल्युबिलिटी इश्यूज, अगर आपने एक इनोवेटिव टेक्निक से सॉल्युबिलिटी इशू एड्रेस कर दिया तो वो एक छोटा सा रिसर्च का कंपोनेंट हो सकता है. तो इम्पॉर्टेंट इज टू आइडेंटिफाई द अनमेट नीड. अनमेट नीड मीन्स ऐसी कौन सी जरूरत है जो रिसर्च से पूरी नहीं हुई है और हम उसमें रिसर्च का एलिमेंट डाल के उसको कंप्लीट कर सकते हैं. एंड जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट से इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो वहाँ पे देयर आर इन अ ब्रॉडर सेंस वहाँ पर बहुत बड़े कमर्शियल बेनिफिट्स हैं. क्या रहता है, अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, वो कंपनी को दे हायर द हाई सैलरी पीपल, तो उनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि कितनी जल्दी वो प्रोडक्ट मार्केट में ले आए सो दैट जो एक्सक्लूसिविटी उनको मिले. जब वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा तो वो बेनिफिट्स पूरे के पूरे वो कंपनी रीप करेगी, जब तक कि कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं आ पाता, है ना. तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं रिसर्च के, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि अगर इंसाइट है, क्यूरोसिटी है, तभी ये ड्राइव होता है. एक काम नहीं है. जनरली एम फॉर्म के बच्चों में एक मानसिकता है कि एक प्रोजेक्ट बनाना है और जमा करना है और हमारी थीसिस करना है. तो ये रिसर्च नहीं है ना. रिसर्च इज यू शुड ऐड सम वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज. अगर आप वो वैल्यू ऐड कर रहे हो थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, देन इट इज अ रिसर्च. उसको एक पैशन की तरह ले. बिल्कुल पैशन की तरह. पैशन के बिना आप रिसर्च कर ही नहीं सकते. अगर आपको रिसर्च का पैशन नहीं है, आप रिसर्च कर ही नहीं सकते. आप एक काम कर रहे हो, काम बेसिकली आप बेसिकली हाँ आप एक टास्क अचीव करना चाह रहे हो, दैट्स इट. ऑब्जेक्टिव इज, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक थीसिस जमा करना. मुझे तो लगता है सर रिसर्च नहीं, जो भी हम करना चाह रहे हैं उसको एक पैशन की तरह लेकर करें तो वो ज्यादा बेनिफिट देगा आगे चलकर. बेनिफिट है. तो हमारा भी जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो इंटरेस्ट क्रिएट करना रहता है. ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स फॉर द रिसर्च.
I hope, sir, this advice to our viewers or the pharmacy students should help to how to choose their career in research. And my next question is that, sir, what do you think? Which pharmaceutical areas are most promising in next coming decades? Say any area of pharmaceutical science that increases the patient compliance, that increases the efficacy of the drug, and that tends to reduce the side effect profile of a drug. It would be promising in the next decade. To name a few, advanced drug delivery, or you can say cancer chemotherapy, biotechnology and biosimilar products, then precision medicine. These are all having, say, a great potential for the future. And I just want to share one more thing here. The global pharmaceutical market is expanding at a rate of 4 to 6% on CAGR basis, compound annual growth rate. But our domestic market, our Indian market, it is, say, growing in double digit at a rate of, say, 10 to 12%. That is almost double of the rate at which global market is growing. So there's a tremendous potential for the students, for the would-be pharmacist, or for the students who are pursuing their course in pharmacy, provided by the end of the course they end up acquiring certain skill sets. That is, those are essential for practicing the profession. Sir, have you seen a shift in how research is approached post pandemic or with the rise of AI tools? Definitely, post-pandemic, with the rise of AI tools, research has undergone a transformative change, becoming more digital, AI driven, and interdisciplinary than ever before. Literature surveys, reviews, data analysis are now being more exhaustive and accurate and quicker than ever before. AI is helping in all the domains of pharmacy, be it, say, drug discovery, drug development, be it predictive modeling, structural activity relationship defining, uh, QSAR studies. So there's hardly any sphere left that is untouched by the artificial intelligence now. Artificial intelligence is enhancing the depth and efficiency of pharmaceutical research also. Sir, I also heard that robots are doing operations and all that. Yeah, you have heard the right thing. In there are robotic surgeries, they are going on. Sir, is there any research project or patent that you're especially proud of? Yeah, Sanskriti, definitely. I would like to discuss one patent here. Say, we were working on developing a nasal formulation for the management of pain. तो प्रॉब्लम क्या था वो मैं पहले आपको बताता हूँ कि अभी ओरल टैबलेट्स वगैरह आते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेन. तो टैबलेट्स यूजुअली इट टेक्स अराउंड 1.5 to 2 hours जो आपके ब्लड में जाके सी मैक्स आता है और आपको एफिकेसी मिलती है. तो आर ऑब्जेक्टिव वाज टू से डिफाइन अ नोवल नेजल जेल, टू डेवलप अ नोवल नेजल जेल जहाँ पर हमको एफिकेसी इन 15-20 मिनट्स मिल जाए, क्योंकि डायरेक्ट वी वर टारगेटिंग नोज टू सिस्टमिक सर्कुलेशन के जैसे ही, क्योंकि बिकॉज नेजल एपिथेलिया इज वेरी लीकी एंड वैस्कुलेचर. तो वहाँ पर हमने एक नेजल स्प्रे डिज़ाइन किया और यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन 15 to 20 minutes we got the maximum Cmax and जो पहले आता था 1.5 से 2 घंटे में वो 15 मिनट में आ गया. और जो इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी भी थी वो भी काफ़ी हद तक नेजल स्प्रे ने एड्रेस करी. तो दिस वाज वन से पेटेंट. एंड एक हमने बेसिकली जो रिसर्च प्रोजेक्ट के फॉर्म में ग्रांट मिला था उसमें वी वर ट्राइंग टू डेवलप से नेजल इंसिटू जेलिंग सिस्टम फॉर एंटी एमेटिक ड्रग डिलीवरी. क्या होता है जब वॉमिटिंग होता है तो आप ओरली टैबलेट्स नहीं ले सकते, क्योंकि आप अगर टैबलेट्स लेंगे तो आप वॉमिट आउट कर दोगे.
तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग होता है, मोशन सिकनेस होता है, तो उस एरिया को कि भाई आप पर्स में या पॉकेट में यू कैन कैरी द नेजल स्प्रे। तो उसका भी यही था कि आपने एक पफ लिया और आपने वो आपके नेजल म्यूकोसा से ड्रग जो है वो सिस्टमिक कंपार्टमेंट में चला गया और आपको एफिकेसी तुरंत मिल गई। तो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड। तो यहाँ पर एक अनमेट नीड थी, देखो रिसर्च के लिए, कि आप क्या कर रहे हो, आप जो पेशेंट को 2 घंटे बाद आपका असर मिल रहा है वो आपने 15 मिनट में दे दिया, और एक जहाँ पर कोई प्रोडक्ट ही नहीं है मार्केट में, कि आपके पास अगर वॉमिटिंग हो रहा है आप क्या करोगे, उतर जाओगे क्या बस से? नहीं। फिर व्हाट ऑप्शन यू हैव? अगर आप कैरी कर रहे हो इस तरह का कोई डिवाइस, आप फॉर्मुलेशन, आप पफ ले लोगे और आप 10 मिनट में यू विल बी कंफर्टेबल कि ठीक है रेस्ट ऑफ द जर्नी मेरी अच्छे से हो जाएगी, कट जाएगी। इट्स truly appreciating, sir. Sir, any myth you would like to burst about research or innovation? As I said earlier, research is not a title, it's a mindset. And it arises out of, say, understanding, curiosity, then adding something new to the existing knowledge. तो मिथ तो बेसिकली यही है कि रिसर्च बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, और सबके बस की बात नहीं होती। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट इज़ ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। देखो अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो आपको एग्जिस्टिंग से, आप जैसे एक रूटीन लैब प्रैक्टिकल करते हो है ना, आप भी उसमें अगर आप उसको से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आखिरी तक कर रहे हो, अब आप उसको से उसकी वैल्यू एडिशन करना चाहते हो। आपने एक सपोज क्रीम बनाया ना, वो क्रीम अगर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज नहीं आई तो आप क्या करोगे? आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुई है ना। यस, सेकंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने बढ़िया क्रीम बना लिया। अब आपका इंटरेस्ट नहीं, मुझे टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में और अच्छा काम करना है, क्रीम में स्टिकीनेस आ रही है, क्रीम में ग्रीसीनेस आ रही है, मुझे क्रीम नहीं चाहिए, आई वांट अ बेटर प्रोडक्ट है ना, जो पेशेंट के कंप्लायंस में भी ऐड करे। तो अब आप सोचोगे कि यस आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन, या जेल्स बनाते हैं क्योंकि जेल्स का कंसिस्टेंसी इज बेटर, एप्लीकेशन के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कोई स्टेनिंग नहीं होता, ग्रीसीनेस नहीं रहता। तो ये आपने क्या कर दिया, आपने एक प्रोडक्ट में यू एडेड वैल्यू है ना। तो ऐसा ही रिसर्च है, इंपॉर्टेंट इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब उसमें से जो बेटर सॉल्यूशंस है हम वो ट्राई करेंगे। अगर वो वर्कआउट करता है इट इज वेरी गुड, नहीं करता तो विल वर्क ऑन ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस। पर्पज इज टू गेट अ बेटर प्रोडक्ट सो दैट पेशेंट को एक बेटर हम प्रोडक्ट दे पाए। और दूसरे ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं विज़ अगर आप से एनहांसिंग द एफिकेसी और रिड्यूसिंग द टॉक्सिसिटी पे भी अगर आप कुछ कर सकते हो, लेकिन उसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स डिमांड करते हैं है ना, तो उस डायरेक्शन में भी आप कर सकते हो। What role does collaboration play in successful research or innovation, sir? Collaboration definitely plays a very crucial role in increasing the overall efficacy, or you can say effectiveness and impact of research. So you see, एक लैब जो होती है कभी भी उसमें सारी फैसिलिटीज होना पॉसिबल नहीं होता है ना। जैसे सपोज हम वी आर से वेरी मच इक्विप्ड इन ह्यूमन रिसोर्स, हमारे पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है लेकिन हमारे पास अच्छा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है ना। तो हम किसी से कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम उनका जो भी है इक्विपमेंट रिसोर्स या जो भी उनका इंस्ट्रूमेंटेशन है वी कैन यूज इट। अब सपोज हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, हम फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी बनाते हैं, हम कैरेक्टराइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमारा इंटरप्रिटेशन पुअर है। भाई हमको ज्ञान नहीं है कि जैसे सपोज हमने डीएससी कराया या एफटीआईआर कराया या हमने एक्सआरडी कराया तो इसके रिजल्ट्स हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, एक होता है हमने पेड बेसिस पे करा लिया, तो पेड बेसिस पे क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता सामने वाले का, उसने आपसे पैसा लिया, आपका काम कर दिया। जब आप उसको एज अ कोलैबोरेटर ले लेते हो तो वो आपको गाइड भी करता है कि आप अपन किस तरह का, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारे क्या गैप्स आ रहे हैं और हम उसको कैसे अचीव
कर सकते, तो हमको गाइड भी कर सकता है कि हम इस तरह की अगर फॉर्मुलेशन डेवलप करेंगे तो इस तरह के रिजल्ट्स एंटिसिपेटेड हो सकते हैं, है ना। अब ये तो हो गया फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, कैरेक्टराइजेशन तक। अब आपको एक कोलैबोरेटर आगे भी चाहिए। अगर आपको से प्री क्लिनिकल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना है, जो आपने बनाया, आपने जो सोच के बनाया, वो एनिमल मॉडल्स में वैसा काम कर रहा है क्या? क्योंकि अगर वो एनिमल मॉडल्स में काम करेगा तभी आप उसकी प्रेडिक्टिव मॉडलिंग कर सकते हो ह्यूमन बींग्स में, है ना। तो अगेन, अब से कोई फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट है, उसको उतना ज्यादा फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स का या एनिमल हैंडलिंग की एक्सपर्टीज नहीं है ना। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग से डाइवर्स एक्सपर्टीज अंडर वन अम्ब्रेला। अलग अलग लोग, अलग अलग तरह की स्किल सेट एक अम्ब्रेला में जब काम करती हैं तो रिसर्च रिकॉग्निशन भी अच्छा मिलेगा, इम्पैक्ट भी ज्यादा रहेगा, इफेक्टिव भी ज्यादा रहेगा, और आप कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप बहुत अच्छे से यू कैन प्रोवाइड से वेरी गुड सॉल्यूशंस टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। बेसिकली सर, एक से भले दो, दो से भले तीन, नहीं, दो से भले तीन चार नहीं, मतलब नहीं सिर्फ दो। ऐसा थोड़ी है कि स्कूटर में काम नहीं हो रहा तो कार ले ली तो बस ले ली, मतलब इट हैज टू बी इम्पैक्टफुल। जो चार लोग हैं, चारों जिम्मेदार होने चाहिए, चारों एक्सपर्ट होने चाहिए अपनी फील्ड के, और चारों कंट्रीब्यूट करें। नाव है नाव, देखो चार पतवार हैं, वही लोग बैठे जो पतवार चला सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पार तब लगेगी जब चारों नाव चला पाएंगे। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एज अ एम-फार्म स्टूडेंट हम रिसर्च करते हैं तो हमको रिपीटेटिव फेलियर्स मिलते हैं, और जब हमें रिपीटेटिव फेलियर्स मिलते जाते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक वक्त आता है कि हमारा कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो हो जाता है उस काम को करने के लिए। हमें इच्छा नहीं होती है कि हम एक और ट्रायल भी लगाएं या एक और हम कॉलेज भी जाएं हम कुछ करने। तो सर, हम ऐसा क्या करें कि हमें वो चीज़ से मोटिवेशन मिले, ना कि हम उससे डीमोटिवेट हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिसर्च इज अ बेसिकली इट्स अ माइंडसेट, इट्स नॉट अ टाइटल। और रिसर्च के जो ड्राइवर्स हैं वो रहते हैं प्राइमरली सेल्फ बिलीफ, योर पैशन फॉर रिसर्च, योर इंटरेस्ट इन रिसर्च, आप कितने क्यूरियस हो, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक को लेके, और आप में क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है कि नहीं। तो देखिए, फेलियर्स आर नेचुरल, है ना। क्योंकि आप अगर कोई भी रिसर्च को देखेंगे, जिस भी रिसर्च ने एक प्रोडक्ट ट्रांसलेट किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो 10 से 12 साल लगते हैं। तो 10 से 12 साल लग रहे हैं तो इट डायरेक्टली वो कोरिलेट करता है कि ये लेंदी प्रोसेस है और फेलियर्स ज़्यादा हैं। अदरवाइज 2-3 साल में आप एक प्रोडक्ट को डेवलप करके मार्केट कर सकते थे। लेकिन कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जब कोई ड्रग राइट फ्रॉम द डिस्कवरी टिल डेवलपमेंट और मार्केटिंग फेज तक जाता है तो जनरल जो टाइम फ्रेम रहता है इट इज अराउंड 8 to 12 ईयर्स। तो फेलियर्स आर नेचुरल। तो फेलियर्स बेसिकली, हमको फेलियर्स को एज अ गाइडिंग टूल लेना है कि हमको क्या नहीं करना है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च। क्या करना है ये तो इम्पोर्टेंट है, बट क्या नहीं करना। तो आपके जो फेलियर्स आए हैं उससे आपको ये लेसन लेना है कि इतनी चीजें अब मुझे आगे नहीं करनी है। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी रिसर्च को नियर फ्यूचर में आप उसको नैरो डाउन करते जा रहे हो। तो अब आप बहुत ही नजदीक हो। अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचो तो यू आर वेरी नियर टू योर से अकम्पलिशमेंट ऑफ द डिजायर्ड रिजल्ट्स which you are expecting out of your research. So believe in yourself, then don't be impatient and don't let your interest, आप अपना इंटरेस्ट जो है खत्म मत होने दो रिसर्च में, और आप जल्दी ही अपना टारगेट्स डेफिनेटली अचीव कर लो। सर, अब है मेरा फेवरेट पार्ट इस पॉडकास्ट का, जो कि है रैपिड फायर राउंड। आप चाहे तो इसको वन वर्ड या सेंटेंस में आंसर कर सकते हैं। ओके। टी और कॉफी? हॉट टी एंड कोल्ड कॉफी। रिसर्च और टीचिंग? academic research. फेवरेट साइंटिस्ट? There are many Nobel laureates to whom I admire, like Sir Alexander Fleming for his research or discovery and development of penicillin. Then Sir Frederick Banting and John MacLeod for the discovery and development of insulin. These are milestone discoveries. And Sir Paul Ehrlich
for giving the concept of magic bullet and for his tremendous contributions in the field of immunology. The great people. Early bird or night owl? A hummingbird. If not pharmacy, then what? Maybe business in some domain of pharmacy only. Paperbacks or PDFs? Paperbacks. One life lesson you wish you had learned earlier. To be more, say, patient in during my early days of my career. Leadership in one word. It's about inspiring and involving your colleagues to pursue excellence. Your go-to stress buster. A walk. A quote you live by. The famous quote by Swami Vivekananda, all the power is within you. You can do anything and everything. Invention that changed pharmacy. You can say the extraction of, say, morphine from opium. Thank you, sir. It was truly amazing round. Sir, now I have a lighter questions for you. If you had to rename pharmacy, what would it be? Pharmacy basically is derived from the Greek word pharmakon, which means drug or poison or medicine. So the ideal, say, second term for pharmacy would be Vishamrit. What's harder, publishing a paper or explaining your job in a wedding? Definitely explaining my job at a wedding. What's the most creative excuse you have ever heard for missing a class or deadline? एक बार की बात है, एक स्टूडेंट लेट आया था क्लास में, तो मैंने पूछा क्या बात है, तो रेगुलर तुम लेट आ रहे हो 2-3 बार से, तो कहता है सवेरे मेरे को फीवर आ जाता है, मैं रेडी होता हूँ तो. What's the funniest thing you have seen in an exam paper? एक बार माइक्रोबायोलॉजी का मैं आई वाज असेसिंग द माइक्रोबायोलॉजी कॉपीज, तो उसमें क्वेश्चन था कि व्हाट मीडिया डज टू द ऑर्गेनिज्म, सो व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया. तो उसमें बच्चे ने एक आंसर लिखा था कि ये बैक्टीरिया का पोषण करता है. ठीक है. Sir, as a token of appreciation for joining us on Beyond the Prescription, we would love to present you a special goodies hamper. Thank you so much. Thank you, sir, for sharing your insights and experience with us today. Dr. Kapil Khatri, sir, thank you for sharing your insights and experiences with us today. Your journey is a powerful example of visionary leadership in research and education. To our listener, we hope you enjoyed today's episode of Beyond the Prescription. If you found value in this conversation, be sure to like, share, and subscribe to our show. Mic drop for now. This voice will be back again until you know it. This is Sanskriti Pandey signing off with lots of love, light, and good vibes. Until next time, stay curious, stay inspired, stay learning. Take care and stay tuned.